Hello friends, how are you? Welcome to the Japan Study Center. Today we are going to see the social certification. You know that social certification is the most important topic here. Next point arrive here, that's important. There is a next point here. Social certification and social mobility here. You know that's an important point. Social certification and social mobility. Social mobility referred to the movement within the social structure from one social position to another. That's important. There is a social mobility referred to the movement within the social structure from one social position to another. It means a change in the social status. It means a change in a social status. All the societies provide some opportunity for a social mobility here. All society provides some opportunity for a social mobility, but the society different from each other. But society differ from each other to extent in which the individual can move from one class to a status level to another. There is an important point here. Individual can move from one class or status level to another. That's important. That's important here. The concept of social mobility has a fundamental importance in ascertaining the relative openness here of social structure. The nature, form, direction, and magnitude of social mobility depends on the nature and types of social certification. That's important. The nature of form of direction and magnitude of social mobility and depends on the nature and types of social certification. Sociologists, sociologists study of social mobility in order to find out the relative openness of social structure. That's important line here. Sociologists study a social mobility in order to find out the relative openness of social structure. Any group that improves its standard will also improve its social structure. Any group that improves its standard will also improve its social status. But the rate of social mobility is not informal. There is a rate of social mobility is not uniform in all the countries. It is differ from a society to the society from to time to time. That's important. It is differ from society to society from time to time. In India, the rate of mobility is naturally low because of the agriculture began their predominant occupation and the continuity of caste system as compared to the other country of the world. That's important here. The India's rate of mobility is naturally low because of agriculture began there is a predominant here. An occupation and the continuity of the caste system as compared to the other country of the world. Let's see types of mobilities here. That's important here. The types of social mobility, that's important here. The types of social mobility. In a social certification, the movement occur in the three direction. The social certification, the movement occur in the three direction. First year from lower to higher. There is a form of lower to higher and from higher to lower. And between two positions at the same level. You know that the three is a direction here, lower to higher and higher to lower, and between two positions at the same level. That's an important direction. But type here, social mobility is a two types. First, vertical mobility.
and second is a horizontal mobility here. Now that's important. The social mobility of the two types here. First, vertically mobility, and second is a horizontal mobility. That's important. And let's see one by one. There is a very explanation here. First here, vertical mobility. Vertical mobility is it is referred to the movement of people from one stimulus to be another or from one status to another. It's a bearing chance. There's a bearing change in a class, occupation, and power. That's important here. There's a people from one assumed to be another, a form of one status to another. It's a bearing change in a class, an occupation, and power. It involves movement from lower to the higher and higher to lower. It involves movement here from lower to higher and higher to lower. There are two types of vertical mobility. One is a upward and another is a downward. The downward mobility is important. One is a upward mobility and second is a downward mobility here. When an individual move from lower status to higher status, that's important. The move from a lower status to higher status, it's called upward mobility. There's a upward mobility. For example, if the son of a peon joined a bank as an officer, that's mean it is a lower status to take a higher status, means upward mobility. There is examples important. Son of peon joined to the bank of officer. It is said to be a upward social mobility. But if they lose their job due to any other reason or influence, is a downward mobility from the previous job. That's important. So downward mobilities take place when two person move down from one position to another. The change is a status. Know that you understand. There is a upward mobility and downward mobility. Is this most important here? The next here, horizontal mobility. Horizontal mobility here are second types here. Horizontal mobility is important. It is referred to the movement of people from one social group to another situated on the same level. It means that ranks of this group, two groups are not different. It means that the ranks of these two groups are not different. It indicates a change in the position without the change in the status. Indicates here change in the position without the change in the status. For example, if a teacher labels one school and join another school, or bank officer label one branch to work is another or change to resident at the horizontal mobility. It means here there is a position without a change in the status. That's important, horizontal mobility. But horizontal mobility is divided as a two types. Horizontal mobility, apart from the above two boarded types of social certification here. And there are two other types of social certification in the term of dimension of time. There is a two types here, dimension of time, and they are intergenerational mobility here. That's important, intergenerational mobility. When the change in a status occur from one generation to another, it's called to the intergenerational mobility. That's important here. When the change in the status occur from one generation to another, it is called intergeneration mobility. For example, if the son changes his status either by the taking upon occupation of higher or lower rank with that of his father, and there is an intergenerational mobility take place here. That's an important example here. You know that if the son change his status either by the taking upon occupation of higher or lower rank with that to his father, there is an intergenerational mobility take place here. Another here,
The intragenerational mobility, you know that's important. The second here, intragenerational mobility. When a change in the status occur within one generation, and it is just called intragenerational mobility. There is a change status occur within the one generation only. It is a called intragenerational mobility. For example, the rise or fall in the occupational status of family, which is the lead to be change in the social status within one generation, is called intergenerational mobility. You know that the rise and fall in the occupational status of a family, which lead to change in its social status within one generation, it's called their intragenerational mobility here. यहाँ पर जो हम टॉपिक कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा टॉपिक जो है समाजी सत्रीकरण। समाजी सत्रीकरण के अंतर्गत हमारा अगला पॉइंट जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है, और हमारा पॉइंट है समाजी सत्रीकरण और सामाजिक गतिशीलता। कहते हैं देखा जाए तो समाजी सत्रीकरण और सामाजिक गतिशीलता काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। सामाजिक गतिशीलता का तात्पर्य समाज संरचना के भीतर एक समाज स्थिति से दूसरे समाज तक गतिशीलता से है। देखिए, इस गतिशीलता का यहाँ अर्थ यही है कि एक समाज संरचना के भीतर एक समाज स्थिति से दूसरे समाज स्थिति को पहुँचना, यानी गति से पहुँचना, चाहे वो लोअर से उच्च में हो या उच्च से लोअर में हो। इसका अर्थ ये हुआ कि समाज स्थिति में परिवर्तन, यानी जो आपको समाजी स्थिति मिली है उसमें जो है परिवर्तन को यहाँ दर्शा रहा है। यानी सामाजिक गतिशीलता जो है सामाजिक स्थिति में परिवर्तन को दर्शाता है। सभी समाज सामाजिक गतिशीलता के लिए कुछ अवसर प्रदान जरूर करते हैं। यानी देखा जाए तो हर एक समाज में हर एक व्यक्ति को अपने अवसर प्रदान किया जाता है कि वो उच्च से निम्न में या निम्न से उच्च में जाने के लिए वो तैयार रहें, और इसके लिए उनको कर्म करने पड़ते हैं। तो यहाँ काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि सभी समाज में सामाजिक गतिशीलता के लिए कुछ अवसर जरूर प्रदान किए जाते हैं, सभी को एक मौका जरूर दिए जाते हैं। लेकिन समाज एक दूसरे से उस हद तक भिन्न होते हैं जिसमें व्यक्ति एक वर्ग या स्थिति के सदस्य से दूसरे में जा सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ आता है कि समाज जो है एक दूसरे से कई हद तक अलग अलग होते हैं, जिसमें व्यक्ति एक वर्ग या एक स्थिति से दूसरे समाज में जा सकते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात आता है इस बात के लिए। ऐसा कहा जा सकता है कि सामाजिक गतिशीलता की मात्रा जितनी अधिक होगी वर्ग संरचना उतनी ही अधिक खुली होगी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि सामाजिक गतिशीलता की मात्रा जितनी अधिक होगी वर्ग संरचना उतनी ही अधिक खुली हुई होगी। समाज संरचना के सापेक्ष खुलेपन और सुनिश्चित करने में सामाजिक गतिशीलता की अवधारणा का मौलिक तत्व है। सामाजिक गतिशीलता की प्राकृतिक रूप, दिशा और परिणाम सामाजिक गतिशीलता की प्राकृतिक और प्रकार पर निर्भर करता है। समाज संरचना के अपेक्षा खुलेपन का पता लगाने के लिए समाजशास्त्री सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो सामाजिक गतिशीलता काफ़ी महत्व रखता है, और सामाजिक गतिशीलता जो है यहाँ पर समाज संरचना की अपेक्षा खुलेपन को सुनिश्चित करता है। सामाजिक गतिशीलता की प्राकृतिक रूप, दिशा और परिणाम समाजी सत्रीकरण की प्राकृतिक और प्रकार पर निर्भर करता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यह बात है जिसको आपको नोट करना चाहिए कि सामाजिक गतिशीलता की प्राकृतिक जो होती है उसका रूप, दिशा और परिणाम समाजी सत्रीकरण के प्राकृतिक और प्रकार पर निर्भर करता है। समाज संरचना के अपेक्षा खुलेपन का पता लगाने के लिए समाजशास्त्री समाज गतिशीलता का अध्ययन समय समय पर करते रहते हैं। जो भी समूह अपने सदर में सुधार करता है उसकी समाज स्थिति में भी सुधार होगा। देखिए, ये बात तो कई हद तक सही है कि जो समूह अपने सदर में सुधार करेगा उसकी समाज स्थिति में भी काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन समाज गतिशीलता की दर सभी देशों में एक सामान्य नहीं होता है। तो ये भी बात महत्वपूर्ण है कि समाज गतिशीलता की दर सभी देशों में एक समान नहीं होती है। यह समय समय पर एक समाज से दूसरे समाज में भिन्न नज़र आती है। यानी एक समाज से दूसरे समाज में ये काफ़ी विभिन्न नज़र आती है। भारत में गतिशीलता की दर स्वाभाविक रूप से कम है।
भारत में देखा जाए तो गतिशीलता यानी समाज स्तर की गतिशीलता की दर स्वाभाविक रूप से बहुत ही कम है, क्योंकि भारत, आपको पता ही होगा कि भारत कृषि प्रमुख व्यवसाय है, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है और इसका प्रमुख कृषि व्यवसाय है और दुनिया के अन्य देशों की तुलना में जाति व्यवस्था की निरंतरता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारत में जाति प्रथा है और भारत कृषि प्रधान देश है, इसलिए भारत में देखा जाए तो गतिशीलता की दर स्वाभाविक रूप से बहुत ही कम है। उसके पश्चात आता है सामाजिक गतिशीलता के प्रकार। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है सामाजिक गतिशीलता के प्रकार। सामाजिक सदरीकरण में तीन दिशाओं में होती है। जैसे हमने गति की बात किया था, सामाजिक सदरीकरण में जो ये गति देखी गई हो 3 दिशा में होती है और ये हम गतिशीलता के प्रकार के अंतर्गत भी देख सकते हैं। देखा जाए जो गति होती है निम्न से उच्च की ओर होती है, यानी निम्न जाति से उच्च जो स्टेटस तक, और उच्च स्टेटस से निम्न स्टेटस तक जाती है। यानी देखा जाए तो निम्न से उच्च, उच्च से निम्न। और एक ऐसा स्थिति भी होता है जहाँ पर सामान्य स्तर पर दो स्थिति के बीच में होता है, यानी दोनों स्थिति के बीच में हम बिलोंग करते हैं, जिसे हम मिडिल क्लास कहते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यह गतिशीलता है। अगर प्रकार की बात करें हम तो सामाजिक गतिशीलता 2 प्रकार की होती है। सामाजिक गतिशीलता यहाँ पर जो देखी जाएगी 2 प्रकार की, एक ऊर्ध्वाधर लंबवत गतिशीलता, यानी देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, और एक क्षैतिज गतिशीलता। तो ये 2 गतिशीलता जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए चलिए इस पर हम विस्तार पूर्वक और भी चर्चा करें और हर एक बात को समझने की कोशिश करें। तो प्रथम जो यहाँ गतिशीलता की बात कर रहे हैं वो है ऊर्ध्वाधर यानी लंबवत गतिशीलता। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऊर्ध्वाधर लंबवत गतिशीलता भी कहते हैं हम इसको। इसका तात्पर्य लोगों को एक स्तर से दूसरे स्तर तक या एक स्तर से दूसरे स्तर तक जाने से है, यानी व्यक्ति एक लेवल से दूसरे लेवल तक किस प्रकार जाता है। और यह वर्ग जो है व्यवसाय सत्ता में परिवर्तन लाता है, यानी ये आपको वर्ग में, व्यवसाय में और सत्ता में काफ़ी परिवर्तन ला सकता है। इसमें नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे की ओर गतिशील होती है, यानी लोअर से हायर, हायर से लोअर, कोई भी रूप हो सकता है। यानी नीचे से ऊपर की तरफ भी हो सकता है या ऊपर से नीचे की तरफ भी हो सकता है। यानी देखा जाए तो इसमें दोनों गतिशीलता जो है शामिल होता है। ऊर्ध्वाधर गतिशीलता 2 प्रकार की होती है। एक होता है ऊर्ध्वमुखी और दूसरा होता है अर्धमुखी गतिशीलता। यानी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर देखा जाए ऊर्ध्वाधर 2 प्रकार की गतिशीलता होती है, एक ऊर्ध्वमुखी होती है और दूसरा जो अर्धमुखी गतिशीलता। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए जब कोई व्यक्ति निम्न स्थिति से उच्च स्थिति की ओर बढ़ता है तो इसे हम ऊर्ध्व गतिशीलता कहा जाता है, यानी इसको हम अपवर्ड कहते हैं। तो साफ हो गया बात। जब कोई व्यक्ति निम्न स्थिति से उच्च स्थिति की ओर बढ़ता है तो इसे हम ऊर्ध्व यानी फॉरवर्ड गतिशीलता कहेंगे, यानी ऊर्ध्व गतिशीलता कहेंगे। उदाहरण के लिए यदि एक चपरासी का बेटा एक अधिकारी के रूप में बैंक में शामिल होता है तो इसे ऊपर की ओर सामाजिक गतिशीलता कहा जाएगा, यानी ये ऊपर की तरफ गतिशील होगा। क्योंकि चपरासी का बेटा जो है बैंक में मैनेजर बन के आया है तो इसे ऊपर की ओर सामाजिक गतिशीलता कहा जाएगा। लेकिन यदि वह किसी अन्य कारण या अक्षमताओं के कारण नौकरी खो बैठता है, यानी नौकरी से निकाला जाता है, तो वह अपनी पिछली नौकरी से नीचे की ओर गतिशील हो जाता है। तो इसे हम अधोमुखी गतिशीलता कहेंगे, यानी इसको डाउनवर्ड कहेंगे। तो आप समझ गए, काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि हम यहाँ पर छोटे पोजीशन से उच्च पोजीशन की तरफ जाते हैं तो उसे हम जो है ऊपर की ओर गतिशीलता कहेंगे, और जब हम ऊपर पोजीशन से किसी कारणवश हम नीचे की तरफ आ जाते हैं तो उसे अर्धमुखी गतिशीलता कहेंगे। जब कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है और अपनी स्थिति बदलता है तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात है और ये काफ़ी समझ के लिए भी ज़रूरी है। तो अगला जो हमारा टॉपिक आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्षैतिज गतिशीलता। क्षैतिज गतिशीलता काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसका तात्पर्य यह है कि एक समाज समूह से सामान्य स्तर पर स्थित दूसरे समाज समूह में लोगों की आवाजाही से है। यानी यहाँ पर बात यह है कि एक व्यक्ति जो है दूसरे किसी पोजीशन पे है
और वो उसको दूसरा जगह पर भी वही पोजीशन मिला है, तो इसका मतलब है कि वो अपनी सामान्य स्थिति में बना हुआ है। देखा जाए तो इसका मतलब यह है कि इन दोनों समूहों की रैंक अलग अलग नहीं है, दोनों जगह पर जो उसका रैंक है सामान्य है, और यह स्थिति में बदलाव के बिना स्थिति में बदलाव का संकेत देता है। बेशक स्थिति में बदलाव हुई है, लेकिन इसमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। अब उदाहरण के रूप में देखें और समझें तो ये बात क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। यदि कोई शिक्षक एक स्कूल छोड़कर दूसरे स्कूल में शामिल होता है तो उसमें क्षैतिज गतिशीलता देखने को मिल रही है, क्योंकि उसमें उसकी पोजीशन में कोई बदलाव नहीं हुआ है। उसने सिर्फ बदलाव हुआ है सिर्फ स्कूल छोड़ने की, उसकी पोजीशन में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वो इस स्कूल में भी टीचर था, वो इस स्कूल में भी जाएगा तो टीचर ही रहेगा, सिर्फ उसका स्कूल बदलाव हुआ है, उसका स्टेटस बदलाव नहीं हुआ है। एक और एग्जाम्पल देखें तो एक बैंक अधिकारी एक शाखा छोड़कर दूसरे में काम करने के लिए जाता है या निवास स्थान बदल देता है तो इसे क्षैतिज गतिशीलता होगी, क्योंकि इसमें देखा जाए तो कोई बदलाव नहीं हुआ, सिर्फ उसको जो है एक जगह से सिर्फ दूसरे जगह पर गया है, उसकी पोजीशन में कोई बदलाव नहीं मिला है। तो ये हमें क्षैतिज गतिशीलता के उदाहरणों के रूप में हम समझ सकते हैं। आगे क्षैतिज गतिशीलता कई भागों में विभक्त है, तो इसको दो भागों में जो है आगे बांटा गया है। तो चलिए देखते हैं वो दो भाग क्या है। तो देखा जाए क्षैतिज गतिशीलता तो इसको दो भागों में विभक्त किया गया है। उपयुक्त दो व्यापक प्रकार के समाजीकरण के अलावा समय के आयाम के संदर्भ में दो अन्य प्रकार के समाजीकरण को हमें देखने को मिलता है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्षैतिज गतिशीलता को यहाँ पर दो भागों में बांट दिया गया है। पहला भाग जो है अंतरपीढ़ीगत गतिशीलता, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि पहला जो है अंतरपीढ़ीगत गतिशीलता। तो देखा जाए जब स्थिति में परिवर्तन एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में होता है, यानी गतिशीलता देखिए परिवर्तन किस में होता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में होता है, तो उसे हम अंतरपीढ़ीगत गतिशीलता कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि पुत्र अपने पिता के साथ उच्च या निम्न पद पर आसान होकर अपनी स्थिति बदलता है तो उसे अंतरपीढ़ी गतिशीलता कहते हैं। आज के समाज में ये चीज़ें काफ़ी पाई जाती है कि पिता बेशकली जो है किसानी करके अपना जीवन जी रहे हो, लेकिन उसका पुत्र जो है पढ़ लिख के बड़ा अफसर बन जाता है, बड़े जगहों पर कार्य कर लेता है, तो ये अंतरपीढ़ी गतिशीलता है। या देखिए कोई अगर बंदा गरीब है तो उसका बच्चा भी उच्च कोटि में पहुंच जाता है, तो ये जो है अंतरपीढ़ी गतिशीलता है कि उसने अपनी पुरानी पीढ़ियों की जो आ रही सिलसिला को तोड़कर अपनी स्थिति को जो है बदल दिया है। तो ये जो है अंतरपीढ़ी गतिशीलता के यहाँ उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। आगे जो हमारे समक्ष आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है, अंतरपीढ़ीगत गतिशीलता यानी इंट्रा जनरेशन मोबिलिटी। काफ़ी महत्व है कि अंतरपीढ़ीगत गतिशीलता क्या रहेगी। जब स्थिति में परिवर्तन एक पीढ़ी के भीतर होता है, जब स्थिति में परिवर्तन एक पीढ़ी के भीतर होता है तो इसे हम अंतरपीढ़ीगत गतिशीलता कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए किसी परिवार की व्यावसायिक संरचना में वृद्धि और गिरावट, जिसके कारण एक पीढ़ी के भीतर उसकी समाज स्थिति में बदलाव होता है। तो मैं आपको साफ शब्दों में बताऊं कि मान लीजिए किसी परिवार की व्यवसाय है, ठीक है, और उस व्यवसाय में आपको पता है कि उतार चढ़ाव होता रहता है। अगर वृद्धि हो जाती है व्यवसाय में तो ये उन व्यक्तियों की जो है स्थिति सुधर जाती है, और गिरावट आती है तो उसमें लगे हुए सारे परिवार में जो है काफ़ी गिरावट देखने को मिलेगी। तो जो उनको समाज में स्थिति बदलती है, यानी किसी व्यवसाय के कारण आई वृद्धि और गिरावट के कारण समाज के भीतर जो उनके समाज स्थिति में बदलाव आती है, उसको हम अंतरपीढ़ी गतिशीलता कहा जाता है, यानी इंट्रा जनरेशन मोबिलिटी कहेंगे। तो आप समझ गए होंगे अंतरपीढ़ी गतिशीलता क्या होती है कि एक व्यवसाय में लगे हुए हैं सारे परिवार के व्यक्ति, या कोई बिजनेस खोल रखे हैं और बिजनेस में उतार चढ़ाव होती रहती है। और बिजनेस में तो आपको पता है अगर बिजनेस अच्छा चला गया तो रंक भी राजा बन जाता है, अगर अच्छा ना गया तो राजा भी रंक बन जाता है। तो इसके कारण जो है समाज में उसकी स्थिति भी बदल जाती है। अमीर लोग जो है गरीब क्षेत्र में जाकर अब रहने लग जाते हैं। तो ये सारी जो बदलाव होती है वो अंतरपीढ़ीगत गतिशीलता के कारण होती है, यानी इंट्रा जनरेशन मोबिलिटी के कारण होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक थी। आगे का टॉपिक और भी महत्वपूर्ण है, तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ। यहाँ पर तिरपान स्टडी सेंटर ने आपके लिए जो है समाज स्तरीकरण के ऊपर हर एक
पॉइंट को लाया है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट और भी महत्वपूर्ण रहेगा, तो आपको इसके लिए जो है बने रहना पड़ेगा तिरपान सेंटर के साथ। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर है। कहते हैं अपनी भलाई सब करते हैं, जो दूसरी की भलाई सोचता है वही सच्चा मनुष्य कहलाता है, और ये आप में मौजूद है। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है, चाहते हो कि और वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे आपकी क्लास के अंतर्गत, तो इसमें दोस्तों सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है। आपको पता ही होगा कि तिरपान स्टैंडर्ड 8 से लेकर एमए तक के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। एक बार अगर आइएगा तो हमेशा के लिए जुड़ जाइएगा। तो सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, ये आपका ही चैनल है, आपके लिए ही है। सब्सक्राइब करके चैनल को अपने मोबाइल में सेव कीजिए।